حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، بھائیوں کی سازش۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، بظاہر محبت کے ساتھ کہنے لگے، اے ہمارے ابا جان، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ کھیلے گا، کھائے گا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن ایک باپ کا دل کچھ اور کہہ رہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ کیا وہ جنگل کے بھیڑیے کی بات کر رہے تھے یا انسانوں کے اندر چھپے بھیڑیوں کی؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آخر کار باپ راضی ہو گئے، لیکن یہ رضامندی تقدیر کے ایک بڑے امتحان کی ابتدا تھی۔ کنویں کی تاریکی۔ گھر سے نکلتے ہی راستہ بدل گیا، کھیل کے میدان کی طرف نہیں، ایک ویران کنویں کی طرف۔ اچانک بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا، قمیص اتاری گئی، ننھے یوسف کی فریادیں گونجیں، لیکن ان کا دل پتھر بن چکے تھے، اور پھر انہیں گہرے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اندھیرا، تنہائی، خاموشی، مگر اسی لمحے اللہ کی طرف سے وحی آئی، غم نہ کرو، ایک دن تم انہیں ان کا یہ عمل یاد دلاؤ گے۔ یہ کنواں دراصل زوال نہیں تھا، یہ عروج کی پہلی سیڑھی تھی۔ جھوٹا خون، سچا صبر۔ رات کے اندھیرے میں بھائی روتے ہوئے گھر پہنچے۔ ابا جان، بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا، اور پیش کی گئی خون آلود قمیص۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو دیکھا اور فرمایا، کتنا مہربان بھیڑیا تھا، میرے بیٹے کو کھا گیا، قمیص تک نہ پھاڑی۔ یہ الفاظ طنز نہیں تھے، یہ دل کی گہرائی میں موجود یقین تھا۔ پھر فرمایا، فصبر جمیل، میرے لیے خوبصورت صبر ہی بہتر ہے۔ یہ تھا صبر جمیل۔ شکایت کے بغیر صبر۔ کنویں سے قافلے تک۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ آیا، مصر کی طرف جانے والا تجارتی قافلہ۔ جب دول کنویں میں ڈالا گیا، ایک ہاتھ نے اسے پکڑ لیا۔ خوشخبری، یہاں ایک لڑکا ہے، اور یوسف علیہ السلام کو نکال لیا گیا۔ لیکن آزادی نہیں ملی، غلامی ملی۔ چاند درہموں کے بدلے بیچ دیا گیا۔ مگر قرآن اعلان کرتا ہے، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ محل کی زندگی۔ انہیں خریدنے والا کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ مصر کا ایک با اثر وزیر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو محل میں جگہ دی گئی، بیریاں کھول دی گئیں، عزت دی گئی۔ کنویں سے محل تک کا سفر۔ حصہ ایک، خاندان نبوت میں ولادت۔ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ آپ کے 11 بھائی تھے، جن میں آپ کے سگے بھائی بنیامین تھے۔ بچپن ہی سے یوسف علیہ السلام میں ایک نورانی حسن، ایک پاکیزہ مسکراہٹ اور نرمی و شرافت کی جھلک تھی۔ نرم موسیقی کے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سب بیٹوں سے محبت کرتے تھے، مگر یوسف سے ان کا پیار کچھ خاص تھا، کیونکہ وہ یعقوب علیہ السلام کو بچپن ہی سے اللہ کے خاص بندے محسوس ہوتے تھے۔ حصہ 2، خواب کا ظہور۔ ایک دن یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ورنہ وہ تم سے حسد کریں گے۔ تمہارے لیے اللہ نے ایک خاص مقام چن لیا ہے۔ یہ خواب دراصل مستقبل کی ایک جھلک تھی، جب اللہ یوسف علیہ السلام کو عزت، حکومت اور علم عطا کرے گا۔ حصہ 3، بھائیوں کا حسد۔ یوسف کے بھائیوں نے محسوس کیا کہ والد یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں۔ حسد کی آگ ان کے دلوں میں بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے سازش تیار کی۔ انہوں نے کہا، یوسف کو کہیں دور پھینک دو تاکہ باپ کی محبت صرف ہماری ہو جائے۔ ایک دن وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بولے، ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کھیلنے کے لیے، وہ خوش ہو جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیا اسے نہ کھا جائے، مگر بھائیوں نے یقین دلایا، ایسا نہیں ہوگا، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ حصہ 4، کنویں میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کو جنگل لے گئے تو وہاں انہوں نے ظلم کیا۔
उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में डाल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ तो था, मगर ईमान इससे बड़ा था। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, तो मेरे साथ है। रात को जब भाई वापस आए तो उन्होंने यूसुफ के कर्ता पर झूठा खून लगाकर यकूब अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया और कहा, अब्बा, भेड़िया यूसुफ को खा गया। यकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज देखी, इस पर कोई फाड़ का निशान न था। उन्होंने फरमाया, नहीं, बल्कि तुमने अपने दिल से ये बात बना ली है। मैं सब्र जमील इख्तियार करता हूँ और अल्लाह से मदद चाहता हूँ। हिस्सा 5, काफले वालों की आमद। दूसरे दिन एक काफला वहां से गुजरा। जब उन्होंने पानी के लिए कुएं में डोल डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ऊपर आ गए। काफिले वाले हैरान हुए, ये तो खूबसूरत लड़का है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र ले जाकर गुलाम के तौर पर बेच दिया। हिस्सा 6, इज़्न मिस्र के घर में। काफिले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज़्न मिस्र के हाथ बेच दिया, जो मुल्क मिस्र का वजीर खजाना था। अजीज ने अपनी बीवी जुलेखा से कहा, इस लड़के को इज्जत से रखो, शायद ये हमें फायदा दे, हम उसे बेटा बना ले। यूं यूसुफ अलैहिस्सलाम एक नबी के घर से निकलकर बादशाह के महल में पहुंचे। अल्लाह ने आपको इल्म, हिल्म और खूबसूरती अता की। हिस्सा 7, जुलेखा का फितना। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो जुलेखा उनकी खूबसूरती से मुतासिर हो गई। एक दिन जब घर में कोई न था, वो दरवाजे बंद करके बोली, आओ यूसुफ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ। मेरा रब इज़्न मिस्र मेरे साथ अच्छा सलूक करता है। वो भागे। जुलेखा ने पीछे से उनका कुर्ता फाड़ दिया। दरवाजे पर अजीज आ गया। जुलेखा ने झूठ बोला, यूसुफ ने मुझे बहकाना चाहा, मगर एक गवाह ने कहा, अगर कुर्ता आगे से फटा है तो औरत सच कहती है, और अगर पीछे से फटा है तो यूसुफ सच्चे हैं। कुर्ता देखा गया, पीछे से फटा था। अजीज ने कहा, यूसुफ, तुम सच्चे हो, और ए जुलेखा, अपने गुनाह की मुआफी मांगो। हिस्सा 8, कैद में डाल दिया गया। लेकिन शहर में बात फैल गई। औरतें कहने लगीं, जुलेखा एक गुलाम पर फरेफ्ता हो गई है। जुलेखा ने उन्हें बुलाया, फल और छुरियां दे। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे में आए, औरतों ने हैरान होकर कहा, अल्लाह अकबर, ये तो फरिश्ता है, इंसान नहीं। जुलेखा ने कहा, यही वो है जिस पर मैं फरेफ्ता हूं। आखिरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया गया ताकि बात दब जाए। हिस्सा 9, कैद में दावत तौहीद। कैद खाने में यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ 2 कैदी थे। उन्होंने ख्वाब देखा। एक ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि शराब निचोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटी है और परिंदे खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बताने से पहले सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ बुलाता हूं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फिर ताबीर बताई, तुम में से एक बादशाह के पास शराब पिलाएगा, दूसरा सूली पर चढ़ाया जाएगा। और फरमाया, जिसको रिहाई मिले वो बादशाह के सामने मेरा जिक्र करना। हिस्सा 10, बादशाह का ख्वाब। कुछ अरसा बाद बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 खुश्क खूशे हैं। किसी से ताबीर न हुई। फिर वो कैदी याद आया। उसने कहा, मैं एक शख्स को जानता हूं जो ताबीर बता सकता है। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम 7 साल खूब फसल बोआगे, फिर 7 साल कहत आएंगे। जो बचाओगे वो इन दिनों के लिए काम आएगा। हिस्सा 11, इज्जत की बहाली। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले तहकीक करो, जिन औरतों ने मेरे बारे में बात की थी उनसे पूछो। तहकीक हुई। सब ने कहा, यूसुफ ने कोई गलती नहीं की, वो पाकीज़ा है। जुलेखा ने भी इकरार किया, मैंने ही उनको बहकाने की कोशिश की, यूसुफ सादिक है।
बादशाह ने कहा, हम चाहते हैं कि तुम हमारे खजाने के निगरान बनो। यूं यूसुफ अलैहिस्सलाम वजीर खजाना बन गए। हिस्सा 12 कहत भाइयों की वापसी और बसारत का लूट आना। कहत के दिन आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अनाज लेने मिस्र आए। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, मगर उन्होंने नहीं पहचाना। उन्होंने अनाज दिया और कहा, अगली बार अपने भाई बिन्यामीन को भी लाना। जब वो बिन्यामीन को लाए तो यूसुफ हिस्सा 1 खानदान नबूवत में विलादत। यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते थे। आपकी वालिदा का नाम राहिल था। आपके 11 भाई थे, जिनमें आपके सगे भाई बिन्यामीन थे। बचपन ही से यूसुफ अलैहिस्सलाम में एक नूरानी हसन, एक पाकीज़ा मुस्कुराहट और नरमी व शराफत की झलक थी। नरम मौसीकी के हजरत यकूब अलैहिस्सलाम अपने सब बेटों से मोहब्बत करते थे, मगर यूसुफ से उनका प्यार कुछ खास था, क्योंकि वो यकूब अलैहिस्सलाम को बचपन ही से अल्लाह के खास बंदे महसूस होते थे। हिस्सा 2 ख्वाब का ज़हूर। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब अपने वालिद को सुनाया। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर फरमाया, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, वरना वो तुमसे हसद करेंगे। तुम्हारे लिए अल्लाह ने एक खास मकाम चुन लिया है। ये ख्वाब दरअसल मुस्तकबिल की एक झलक थी, जब अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज्जत, हुकूमत और इल्म अता करेगा। हिस्सा 3 भाइयों का हसद। यूसुफ के भाइयों ने महसूस किया कि वालिद यूसुफ को ज्यादा चाहते हैं। हसद की आग उनके दिलों में बढ़ती गई, यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने साजिश तैयार की। उन्होंने कहा, यूसुफ को कहीं दूर फेंक दो, ताकि बाप की मोहब्बत सिर्फ हमारी हो जाए। एक दिन वो यकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और बोले, हम यूसुफ को अपने साथ ले जाते हैं खेलने के लिए, वो खुश हो जाएगा। यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे डर है कि कहीं भेड़िया इसे ना खा जाए। मगर भाइयों ने यकीन दिलाया, ऐसा नहीं होगा, हम इसका ख्याल रखेंगे। हिस्सा 4 कुनवे में डाल दिया गया। जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल ले गए तो वहां उन्होंने जुल्म किया। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुनवे में डाल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ तो था, मगर ईमान इससे बड़ा था। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, तो मेरे साथ है। रात को जब भाई वापस आए तो उन्होंने यूसुफ के कर्ता पर झूठा खून लगाकर यकूब अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया और कहा, अब्बा, भेड़िया यूसुफ को खा गया। यकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज देखी, इस पर कोई फाड़ का निशान न था। उन्होंने फरमाया, नहीं, बल्कि तुमने अपने दिल से ये बात बना ली है। मैं सब्र जमील इख्तियार करता हूँ और अल्लाह से मदद चाहता हूँ। हिस्सा 5 काफले वालों की आमद। दूसरे दिन एक काफला वहां से गुजरा। जब उन्होंने पानी के लिए कुनवे में डोल डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ऊपर आ गए। काफिले वाले हैरान हुए, ये तो खूबसूरत लड़का है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र ले जाकर गुलाम के तौर पर बेच दिया। हिस्सा 6 इज़्न मिस्र के घर में। काफिले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज़्न मिस्र के हाथ बेच दिया, जो मुल्क मिस्र का वजीर खजाना था। अजीज ने अपनी बीवी जुलेखा से कहा, इस लड़के को इज्जत से रखो, शायद ये हमें फायदा दे, हम उसे बेटा बना ले। यूं यूसुफ अलैहिस्सलाम एक नबी के घर से निकलकर बादशाह के महल में पहुंचे। अल्लाह ने आपको इल्म, हिल्म और खूबसूरती अता की। हिस्सा 7 जुलेखा का फितना। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो जुलेखा उनकी खूबसूरती से मुतासिर हो गई। एक दिन जब घर में कोई न था, वो दरवाजे बंद करके बोली, आओ यूसुफ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ, मेरा रब ब-इज़्न मिस्र मेरे साथ अच्छा सलूक करता है। वो भागे। जुलेखा ने पीछे से उनका कुर्ता फाड़ दिया। दरवाजे पर अजीज आ गया।
जुलेखा ने झूठ बोला, यूसुफ ने मुझे बहकाना चाहा, मगर एक गवाह ने कहा अगर कुर्ता आगे से फटा है तो औरत सच कहती है, और अगर पीछे से फटा है तो यूसुफ सच्चे है। कुर्ता देखा गया, पीछे से फटा था। अजीज ने कहा, यूसुफ तुम सच्चे हो, और ए जुलेखा अपने गुनाह की मुआफी मांगो। हिस्सा 8 कैद में डाल दिया गया। लेकिन शहर में बात फैल गई। औरतें कहने लगीं, जुलेखा एक गुलाम पर फरेफ्ता हो गई है। जुलेखा ने उन्हें बुलाया, फल और छुरियां दे। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे में आए, औरतों ने हैरान होकर कहा, अल्लाह अकबर, ये तो फरिश्ता है, इंसान नहीं। जुलेखा ने कहा, यही वो है जिस पर मैं फरेफ्ता हूं। आखिरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया गया ताकि बात दब जाए। हिस्सा 9 कैद में दावत तौहीद। कैद खाने में यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ 2 कैदी थे। उन्होंने ख्वाब देखा। एक ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि शराब निचोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटी है और परिंदे खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बताने से पहले सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ बुलाता हूं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फिर ताबीर बताई, तुम में से एक बादशाह के पास शराब पिलाएगा, दूसरा सूली पर चढ़ाया जाएगा। और फरमाया, जिसको रिहाई मिले वो बादशाह के सामने मेरा जिक्र करना। हिस्सा 10 बादशाह का ख्वाब। कुछ अरसा बाद बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 खुश्क खूशे हैं। किसी से ताबीर ना हुई। फिर वो कैदी याद आया। उसने कहा, मैं एक शख्स को जानता हूं जो ताबीर बता सकता है। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम 7 साल खूब फसल बोआगे, फिर 7 साल कहत आएंगे। जो बचाओगे वो इन दिनों के लिए काम आएगा। हिस्सा 11 इज्जत की बहाली। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले तहकीक करो, जिन औरतों ने मेरे बारे में बात की थी उनसे पूछो। तहकीक हुई। सब ने कहा, यूसुफ ने कोई गलती नहीं की, वो पाकीज़ा है। जुलेखा ने भी इकरार किया, मैंने ही उनको बहकाने की कोशिश की, यूसुफ सादिक है। बादशाह ने कहा, हम चाहते हैं कि तुम हमारे खजाने के निगरान बनो। यूं यूसुफ अलैहिस्सलाम वजीर खजाना बन गए। हिस्सा 12 कहत भाइयों की वापसी और बसारत का लूट आना। कहत के दिन आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अनाज लेने मिस्र आए। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, मगर उन्होंने नहीं पहचाना। उन्होंने अनाज दिया और कहा, अगली बार अपने भाई बिन्यामीन को भी लाना। जब वो बिन्यामीन को लाए तो यूसुफ। हिस्सा 1 खानदान नबूवत में विलादत। यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परपोते थे। आपकी वालिदा का नाम राहिल था। आपके 11 भाई थे, जिनमें आपके सगे भाई बिन्यामीन थे। बचपन ही से यूसुफ अलैहिस्सलाम में एक नूरानी हसन, एक पाकीज़ा मुस्कुराहट और नरमी व शराफत की झलक थी। नरम मौसीकी के हजरत यकूब अलैहिस्सलाम अपने सब बेटों से मोहब्बत करते थे, मगर यूसुफ से उनका प्यार कुछ खास था, क्योंकि वो यकूब अलैहिस्सलाम को बचपन ही से अल्लाह के खास बंदे महसूस होते थे। हिस्सा 2 ख्वाब का ज़हूर। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब अपने वालिद को सुनाया। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने मुस्करा कर फरमाया, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, वरना वो तुमसे हसद करेंगे। तुम्हारे लिए अल्लाह ने एक खास मकाम चुन लिया है। ये ख्वाब दरअसल मुस्तकबिल की एक झलक थी, जब अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज्जत, हुकूमत और इल्म अता करेगा। हिस्सा 3 भाइयों का हसद। यूसुफ के भाइयों ने महसूस किया कि वालिद यूसुफ को ज्यादा चाहते हैं। हसद की आग उनके दिलों में बढ़ती गई, यहां तक कि एक दिन उन्होंने साजिश तैयार की।
انہوں نے کہا یوسف کو کہیں دور پھینک دو تاکہ باپ کی محبت صرف ہماری ہو جائے۔ ایک دن وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بولے ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کھیلنے کے لیے، وہ خوش ہو جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیا اسے نہ کھا جائے، مگر بھائیوں نے یقین دلایا ایسا نہیں ہوگا، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ حصہ 4 کنویں میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کو جنگل لے گئے تو وہاں انہوں نے